Hello, my dear students. I welcome you all again to my channel, and today I am here with a new video for the students of class 11th on the topic Principles and Concepts of Accounting. Students, in my previous two videos, we have studied the basics of accounting, the meaning of accounting, objective characteristics, advantages and disadvantages of accounting, and we have studied some basic accounting terms. So now moving ahead, today we will start with the topic principles and concepts of accounting. Students, as we have discussed earlier, that accounting is a science. Why it is a science? Because it is based on certain rules and regulations, and these rules and regulations or principles are generally accepted all over the world. This is the basic reason why we call accounting as or a science. So today we will discuss that what are those principles, what are those concepts or conventions on which accounting is totally based. So students, moving ahead, we will start with a topic that is principles and concepts of accounting. First of all, students, there is a term that is named as GAAP, GAAP, which is the basic full form of this abbreviation is Generally Accepted Accounting Principles. Students, Generally Accepted Accounting Principles or GAAP, these are the certain guidelines which are adopted for recording business transaction एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं. इन गाइडलाइंस को नाम दिया गया गैप, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू गैप, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो हिस्से में कैटेगराइज किया गया स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वॉज द अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिसमें तीन अकाउंटिंग कंसेप्ट थे, दैट इज़ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड द अक्रूवल कंसेप्ट. और नेक्स्ट था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें जो मेन प्रिंसिपल्स थे, वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं बट दीज आर द सम मेन प्रिंसिपल्स like business entity, money measurement, accounting period, full disclosure, principle of prudence, historical cost principle and dual aspect principle. So these were some concepts or principles of accounting on which accounting is totally based, and we have to follow the rules and regulations laid down under these concepts or under these principles, which helps us in making the financial statement, which helps us in making the financial records. So students, moving ahead, we will study the first concept, that is the going concern concept. Students, according to this concept, the life of the business is endless and it cannot be estimated. This concept assumes that an enterprise has an indefinite life or existence. It is assumed that the business does not have any intention to liquidate or to scale down its operation significantly. सिंपल शब्दों में मतलब है कि जो बिज़नेस की लाइफ होती है उसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता. इट इज़ एंडलेस. दूसरी बात, कोई भी बिज़नेस इस पर्पज़ से नहीं शुरू किया जाता है कि आफ्टर सम ईयर्स हम उसको लिक्विडेट करेंगे या क्लोज डाउन कर देंगे. हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिज़नेस बहुत लंबे समय तक चले, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज़ एंडलेस. मेंबर्स बिजनेस में आते जाते रहते हैं बट उससे बिज़नेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेंबर्स में कम और मेंबर्स में गो, बट द बिज़नेस गोज़ ऑन फॉर एवर. मेंबर्स आएंगे जाएंगे, कुछ आएंगे आपके यहाँ रिटायर हो जाएंगे, कुछ की डेथ हो जाएगी, बट क्या किसी मेंबर की डेथ होने से बिज़नेस बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं. इट विल कीप ऑन गोइंग टिल अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट या बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली, बिजनेस एंटर्स इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर बिजनेस. एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ अगर मान लीजिए कोई 10 साल या 20 साल या 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है,
तो इसी प्रिंसिपल या इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि हमें पता है दैट द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 25 years, दैट्स वाई वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 25 years. And just because of this principle only, assets and liabilities are classified into current and non-current. आपको लास्ट वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटीज़ भी दो तरह की होती हैं, करंट एंड नॉन करंट, और एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, करंट और नॉन करंट, जो बहुत लंबे समय तक बिज़नेस में इन्वेस्टेड रहते हैं, जिनसे बिज़नेस को बहुत लंबे समय तक बेनिफिट होता है, ऐसे एसेट्स नॉन करंट एसेट्स हैं या फिक्स्ड एसेट्स हैं. तो यही वो प्रिंसिपल या यही वो कंसेप्ट है जो हमको सिखाता है डिफरेंशिएट करना बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स. कौन सा एसेट हमारे पास ज़्यादा समय तक रहेगा, कौन सा कम समय तक रहेगा, किसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है. वी डू ऑल दिस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड गाइडलाइंस लेड डाउन बाय दिस प्रिंसिपल. सो दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. कंसिस्टेंसी का सिंपल सा मतलब है, ये कंसिस्टेंसी वर्ड निकला है कंसिस्टेंट से, जिसका मतलब होता है फिक्स्ड. इट मीन्स कि बिज़नेस को चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, दे शुड बी कंसिस्टेंट, एंड द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच आर सेलेक्टेड वंस और अप्लाइड वंस शुड बी कंसिस्टेंट. दे शुड नॉट बी चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर. बार बार अगर आप अपनी पॉलिसीज़ को, अपने रूल्स को या अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करते रहेंगे तो इट विल डिक्रीज़ द गुडविल ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट. सेकेंडली, अगर आप एक ही जैसे कॉन्सेप्ट या एक ही जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहते हो तो ये आपके लिए आसान हो जाता है कि अपने बिज़नेस को या अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाना हर ईयर की. स्टूडेंट्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड. दे कैन बी चेंज्ड, बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इफ़ देयर इज़ चेंज इन एनी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जिससे आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, तो in this condition you can change the principles, you can change the rules and regulations of the business, but frequent changes in the rules and regulations and the practices of the business may indulge the business into huge losses, and it will also decrease the value, yeah, it will decrease the goodwill of the business in the market, yeah, in the eyes of the consumers. The next is the accrual concept. अक्रूवल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मतलब, सिंपल शार्प शब्दों में मतलब बेटा ये है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड बाय इट्स फुल अमाउंट, वेदर यू हैव रिसीव्ड द अमाउंट इन फुल और नॉट, और वेदर यू हैव पेड द अमाउंट इन फुल और नॉट. सीधी सी बात है, चाहे वो ट्रांजेक्शन कैश का हो या क्रेडिट का हो, पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. लाइक इफ़ यू हैव सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख, आपने 1 लाख रुपए के गुड्स सेल किए किसी को, और उसमें से आपको सिर्फ 60,000 की ही पेमेंट मिली. 40,000 आपके कस्टमर ने कहा कि 40,000 वो आपको 1 वीक बाद दे देगा. बट जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे दैट यू हैव सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 1 lakh and you have received rupees 60,000 in cash immediately and 40,000 is still pending. भाई गुड्स तो हमने 1 लाख के बेचे ना, हमारे बिजनेस से गुड्स या स्टॉक कितने का कम हुआ, 1 लाख का, तो हम रिकॉर्ड तो पूरे 1 लाख से ही करेंगे. ये अलग बात है कि हम उसमें ये ज़रूर बता देंगे कि उसमें हमको 60,000 ही अभी पेमेंट मिला है, बाकी 40,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है. सो स्टूडेंट, यही अप्रूवल कंसेप्ट है कि आपको पूरी पेमेंट मिली हो या ना मिली हो, या आपने पूरी पेमेंट की हो या ना की हो, आपको ट्रांजैक्शन को उसके फुल अमाउंट से ही रिकॉर्ड करना है. आपने किसी से 10,000 रुपीज़ की परचेजेस की, मगर उसको पेमेंट की सिर्फ 5,000, मगर आप लिखोगे क्या, यू हैव परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 5,000 एंड ओनली यू हैव परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 एंड यू हैव ओनली पेड रुपीज़ 5,000 इन कैश एंड रुपीज़ 5,000 इज स्टिल पेंडिंग. आपने पेमेंट पूरी नहीं की पर परचेजेस पूरी से रिकॉर्ड की. क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस में स्टॉक या गुड्स कितने के आए, 10,000 के आए, तो हम पूरे 10,000 के रिकॉर्ड करेंगे. दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट. It simply means that all the revenue and all the expenses recognized when they are earned or incurred, and it is immaterial whether the cash is received or paid at the time of transaction or later.
वही बात है कि आपने ट्रांजैक्शन के टाइम पे पूरा कैश पे किया या आपको ट्रांजैक्शन के टाइम पे ही पूरा कैश मिला या नहीं मिला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ट्रांजैक्शन को उसकी पूरी की पूरी फुल अमाउंट से ही रिकॉर्ड करोगे। सो दीज वर द बेसिक 3 concepts ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड अक्रूवल कंसेप्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रिंसिपल्स स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को हम बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। अब इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है दैट बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड नेम अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन अज्यूम किया गया है जिसकी अपनी एक खुद की पहचान और अपना खुद का एक नाम है अपने ओनर से अलग, जैसे कि रिलायंस एंटरप्राइजेज। रिलायंस बिजनेस का नाम है, ओनर का नाम मुकेश अंबानी है। सो उस पर्टिकुलर बिजनेस की अपनी खुद की पहचान है। मार्केट में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुकेश अंबानी को नहीं जानते, बट 75% और 80% ऑफ द पीपल नो रिलायंस जस्ट बिकॉज ऑफ जियो। जियो तो हर कोई यूज़ कर रहा है, रिलायंस जियो, ईच एंड एवरी वन नो कि रिलायंस है, मगर ओनर कौन है? बहुत से ऐसे लोगों को जिनको नहीं पता होगा। सो बिज़नेस की अपनी खुद की अपनी पहचान, उसका अपना खुद का एक नाम, उसकी अपनी एक खुद की आइडेंटिटी होती है। हम मानते हैं कि बिज़नेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो इतना केपेबल है कि उसकी अपनी खुद की पहचान, नाम है अपने ओनर से अलग। दूसरी चीज़, वॉट एवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द बिजनेस आर प्रिपेयर्ड इन द नेम ऑफ द बिज़नेस। हम जो भी बिज़नेस में अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो बिज़नेस के नाम पर बनाते हैं, ना कि ओनर के नाम पे। जब भी आप जर्नल बनाएंगे तो आप उसमें लिखेंगे जर्नल फॉर रिलायंस लिमिटेड, लेजर फॉर रिलायंस लिमिटेड, ट्रायल बैलेंस फॉर रिलायंस लिमिटेड, नॉट ट्रायल बैलेंस फॉर मुकेश अंबानी और ट्रायल लेजर फॉर मुकेश अंबानी। नो, इट विल बी recorded in the name of the business. Owner is always treated as a creditor and capital invested by him is always treated as a liability. ओनर को हम मानते हैं कि वो बिजनेस का क्रेडिटर है, उसने बिजनेस को कैपिटल दी है कि बिजनेस अपना काम कर सके, वो जब चाहे तब अपनी कैपिटल को विड्रॉ भी कर सकता है बिजनेस से। तो ओनर को हम हमेशा क्रेडिटर मानेंगे और बिज़नेस को हम हमेशा मानेंगे कि जो बिज़नेस ने ओनर से कैपिटल एक तरह से बोरो की है, तो इसलिए जो उसकी कैपिटल है वो लाइबिलिटी है और जो हमें उधार देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो जो ओनर है वो हमारा क्रेडिटर है एंड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। सो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल। Students, moving ahead with the next principle, that is money measurement principle. Students, according to this principles, we record only those transactions in the books of account which can be expressed in the terms of money, and the transactions which cannot be expressed in the terms of money are not recorded in the books of accounts. हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी या जिनको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकेगा। ऐसे ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग की लिमिटेशंस में, दैट वी रिकॉर्ड ओनली द क्वांटिटी, वी डू नॉट रिकॉर्ड द क्वालिटी। ओनली द क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, नॉट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। वी टोटली इग्नोर the quality aspect. Secondly, the transactions which can be expressed in the terms of money, they will be recorded in the books of account. Non-monetary transactions या transaction which cannot be expressed in the terms of money, or the transactions which deals in the quality aspect of anything, these things will be totally ignored. Moving ahead, students, accounting period principle, one of the most important principles. Books of accounts are prepared for a period of 1 year. Usually we prepare books of accounts for a period of 1 year, and this particular 1 year is known as accounting year. हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक साल के लिए बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में समझाया हुआ है
कि हम एक साल के लिए क्यों बनाते हैं, ताकि हम हर साल पता कर सकें कि हर साल हमारे बिज़नेस की क्या प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस एवरी ईयर, एंड हम अपने बिज़नेस के प्रेजेंट ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देख सकें कि वेदर आवर बिजनेस इज़ ग्रोइंग और इट इज़ डिक्लाइनिंग। सो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ईयर जो होता है इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और 365 डेज फॉर विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड। अब अकाउंटिंग ईयर बेसिकली होता है फ्रॉम अप्रैल 1 to 31 ऑफ मार्च। लाइक जैसे हम इस ईयर की बात करें तो ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 से एंड इट विल एंड ऑन 31 ऑफ मार्च 2021। यानी 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च तक हम लगातार जर्नल लेजर बनाते रहेंगे और ऑन 31 ऑफ मार्च हम ट्रायल बैलेंस बना के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के अपनी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करके 31 ऑफ मार्च को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट अगले ही दिन 1 अप्रैल से हमारा नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा जो कि 1 अप्रैल 2021 से चलेगा 31 ऑफ मार्च 2022 तक। क्लियर स्टूडेंट्स? आप कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम जनवरी 1 to 31 ऑफ दिसंबर। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि कैलेंडर ईयर फॉलो करती है या फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, आपको पहले भी बताया गया है कि हम एक साल के लिए ही बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए बनाते हैं बिकॉज वी हैव टू नो द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एवरी ईयर, and it is very much necessary for the owner of the business to know the exact position of the business every year to decide the future plans। हम compare कर सकें कि what was our profit percentage in the previous year, what is the profit percentage in the current year, and accordingly we can plan our future policies, our principles, what techniques will be implemented in the business। So that is why the accounting records are prepared for a period of 1 year which is known as accounting year। Students, moving ahead, next is the full disclosure principle। full disclosure नाम से ही समझ में आता है कि that you have to disclose each and everything, that each and every transaction should be recorded in the books of account, nothing should be kept secret। According to this principle, apart from legal requirements and all significant and material information related to economic affairs of the entity should be fully disclosed। The financial statements should act as means of conveying, not concealing the information। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट एक ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड हो, ईच एंड एवरी transaction, each and every information, each and everything related to the business should be recorded in the books of account। कुछ भी concealed या कुछ भी secret नहीं होना चाहिए। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरह से प्रिपेयर की जानी चाहिए कि उनको देखते ही आपकी एग्जैक्ट पोजीशन, आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी का पता चल सके। अगर आप कुछ भी सीक्रेट रखेंगे या कुछ भी आप ऐसा डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे या अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उस केस में जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी या फाइनेंशियल पोजीशन निकल कर आएगी बिजनेस की, दैट विल बी अनफेयर, वो अनट्रू होगी। इसलिए ज़रूरी है, अगर आप एक फेयर और एक ट्रू पिक्चर चाहते हैं अपने प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी और फाइनेंशियल पोजीशन की, तो इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉर्ड एवरी इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग and the parties may be able to take sound decisions। अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे तो आपको एक ट्रू और फेयर पिक्चर मिलेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन की। बट अगर आप नहीं कुछ छुपाएंगे, अगर आप सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो इट विल हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस ऑल्सो, क्योंकि आपके सामने एक ट्रू पिक्चर होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन की। अगर कुछ भी सीक्रेट होगा तो उससे एक ट्रू पिक्चर नहीं होगी और उस केस में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो भी बिजनेस के फेवर में नहीं होंगे। अगला है द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। स्टूडेंट्स, एक आइडियल बिजनेसमैन उसी को माना जाता है जो अपने प्रॉफिट्स के बारे में ना सोचकर अपने लॉसेस के बारे में सोचे। जो बिजनेसमैन हमेशा अपने लॉसेस के बारे में सोचेगा और अपने जिन
भी चांसेस हैं जहाँ जहाँ से भी लॉसेस होने के, अगर आप उन चांसेस को रिड्यूस करते चले जाओगे तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल not all the but profits once can be ignored, but the losses should not be ignored at all. और अगर आपको कहीं से लॉस हो रहा है या हुआ है, इट शुड बी इमीडिएटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रिपेयर इटसेल्फ टू फेस द लॉसेज इन द फ्यूचर. अब हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, हमें तो पता नहीं कि आगे जाके फ्यूचर में हमारे साथ क्या लॉस होने वाला है. सो आप अपने यहाँ प्रोविजन एंड रिजर्व्स क्रिएट करिए. रिजर्व का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ केप्ट असाइड टू मीट द फ्यूचर कंटिजेंसीज. प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको पहले ही अलग निकाल के रख दिया जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हुआ तो हम उसको उस पर्टिकुलर पैसे से राइट ऑफ कर देंगे. जस्ट एग्जांपल मान लीजिए आपको आपके फादर 1,000 रुपये या 1,000 रुपीज़ आपको पॉकेट मनी देते हैं. आप क्या करते हो, उस 1,000 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ पर मंथ निकाल कर अलग रख देते हो और आप 900 अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो. वो जो आप 100 रुपीज़ अलग निकाल के रख रहे हो दैट इज़ रिजर्व. अब अगर आप उसको किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए रख रहे हो, लाइक यू वांट टू परचेज अ क्रिकेट बैट, तो दैट पर्टिकुलर रिजर्व इज़ बीइंग क्रिएटेड फॉर सम स्पेशल पर्पज़. तो अगर कोई रिजर्व किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए क्रिएट किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोविज़न. और अगर आप उसको सिर्फ इसलिए रख रहे हो कि अलग पैसा निकाल के रख दे रहे हैं, सेव करके चलते हैं, क्या पता आगे ज़रूरत पड़े तो वी विल यूज़, पर उसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, इस तरह के जो रिजर्व्स होंगे उनको हम रिजर्व्स ही कहेंगे. इस तरह की जो पार्ट ऑफ सेविंग्स होंगी उसको हम रिजर्व्स कहेंगे. तो रिजर्व्स और प्रोविजंस बिजनेस में क्रिएट किए जाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द लॉस द अमाउंट डिपॉजिटेड इन दीज रिजर्व्स ओनली विल हेल्प यू इन राइटिंग ऑफ दोज लॉसेज. उन लॉसेज से निपटने के लिए आपको रिजर्व्स के पैसे या रिजर्व्स में जमा किया हुआ अमाउंट हेल्प करेगा. Students, next is the historical cost principle. Students, according to this principle, the asset should be recorded on its historical cost. और historical cost वो cost होती है जिसमें जिस पर्टिकुलर कॉस्ट पर वो एसेट परचेज किया गया है. लाइक यू हैव परचेज द मशीनरी ऑफ ₹5 lakhs, तो उस पर्टिकुलर मशीनरी की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी हो गई, 5 lakhs. सो यू हैव परचेज द मशीनरी ऑफ ₹5 lakhs. तो आपने जो 5 लाख रुपीज़ की मशीनरी परचेज़ की है वो 5 लाख उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है. तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करोगे, दैट यू हैव परचेज द मशीनरी ऑफ ₹5 lakhs. तो ये है 5 lakhs जो है वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है. और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि एसेट जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू पे परचेज किया गया है वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, एंड द एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली. मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट मीन्स कि मान लीजिए आपने लैंड खरीदी 5 lakhs की, तो आपने लैंड की अगर आपने 5 लाख रुपीज़ की खरीदी तो उस पर्टिकुलर लैंड की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी हो गई, 5 lakhs. अब आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लैंड कितने से रिकॉर्ड की, 5 लाख से. आपने लिखा होगा दैट यू हैव परचेज द लैंड फॉर ₹5 lakh. बट आपके लैंड परचेज करने के बाद से उस लैंड की कॉस्ट मार्केट में हो गई 5,50,000. आपकी बुक्स में कितने से रिकॉर्डेड है, 5 लाख से. मार्केट प्राइस कितनी है, 5,50,000. बट you will not record this increase of 50,000 in the value of land because it is totally prohibited according to the historical cost principle. historical cost principle इसको अलाउ नहीं करेगा. वो कहता है कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे एसेट को परचेज किया है उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे रिकॉर्ड करिए, चाहे उस एसेट की वैल्यू में किसी भी तरह का इंक्रीज या डिक्रीज आता है मार्केट में, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. So this is the basic concept, this is the basic guideline given by this principle. स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड, द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, और पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेटा इसी पर बेस्ड है. डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमें समझाता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन में या बिजनेस में होने वाले हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स. फर्स्ट इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट.
It means that business transaction will affect two different accounts. हर business transaction दो अलग अलग accounts को affect करेगा. एक account हमेशा debit होगा और दूसरा account हमेशा credit होगा, और हमें इन दोनों aspects को record करना है, और इस system को हम लोग कहते हैं double entry system. Students, double entry system is a system in which we record both the aspects, the debit and the credit of a business transaction. I repeat myself once again, business transaction, हर business transaction दो different accounts को affect करेगा. एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, और आपको दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना होगा. एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स इज दिस सिस्टम इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम. इसी सिस्टम की वजह से बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, ट्रायल बैलेंस की भी दो साइड्स होती हैं, जर्नल में भी दो अलग अलग कॉलम होते हैं, एक कॉलम डेबिट एक कॉलम क्रेडिट. लेजर में भी दो साइड्स होंगी, एक साइड डेबिट दूसरी साइड क्रेडिट. ट्रायल बैलेंस में भी दो कॉलम्स होंगे, डेबिट कॉलम एंड द क्रेडिट कॉलम. बैलेंस शीट में भी दो अलग अलग साइड्स होती हैं, और इन दोनों साइड्स का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए. इफ़ द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स आर नॉट मैचिंग, इट मीन्स आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कहीं ना कोई फॉल्ट या कोई ना कोई एरर किया है. और इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. मतलब टोटल एसेट्स आपके फर्म में जितने हैं उनकी वैल्यू लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होनी चाहिए. मतलब ये इक्वेशन के दोनों साइड का टोटल जो है इक्वल आना चाहिए. अगर एसेट्स 1 लाख के हैं तो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपीज़. अगर दोनों साइड बराबर नहीं हैं, दोनों साइड मैच नहीं कर रही हैं, इट मीन्स you have committed any type of error in your books of account. So students, this was all about for this topic, principle and concepts of accounting. Hope you will enjoy in this video. You will watch this video, you will learn a lot of things from this video. I'll suggest you to keep watching my videos for better knowledge, for better understanding. And again, as I always say in the end of my videos, that if you have any problem you can ask me anytime. I am always there for my dear students. And now the next topic which we will cover, and the next topic on which my video will be based will be that the basis of accounting or accounting standards. Till then students, keep watching my videos. I have already uploaded 3 videos: introduction to accounting, basic accounting terms and principles and concepts of accounting. Keep on watching, keep on studying my students. Have a good day. Thank you everyone.